آج کی بات، آج کی میرے مولا مولا میرے مولا مولا وہ کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی و انا من الحسین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان اسد اللہ نقوی پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں 11 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور بستی وڈانی میں موجود ہوں۔ یہ سکھر کی طرف موجود ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر اس لیے موجود ہوں، میری طرف پیچھے جو آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں، کسی کا گھر نہیں، یہ کوئی کباڑ خانہ نہیں، نعوذ باللہ من الذالک، بلکہ یہ امام مظلوم کربلا کا گھر اور خدائے پروردگار کا گھر ہے۔ ناظرین، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امام بارگاہ ہے جہاں ہمیں درس انسانیت ملتا ہے، جہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، علی کی ولایت، محمد و آل محمد کی شریعت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں کے با اثر افراد نے یہاں کے لوگوں پر تشدد بھی کیا اور امام بارگاہ کو تالا لگوایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ منیر حسین، امداد حسین، شبیر حسین اور دیگر دوستان جن کے آباء و اجداد نے مل کے کافی عرصہ پہلے پاکستان بننے کے فوراً بعد ان نے اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھی اور اپنی محنت مزدوری کر کے اس امام بارگاہ پہ خرچہ کر کے امام بارگاہ کو ایک اچھا خاصا ایک مقام دیا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اس امام بارگاہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں پارک موجود ہیں۔ اس امام بارگاہ کی اچھی بنیاد تھی، لیکن ایک ماہ سے امام بارگاہ اس لیے بند ہے کہ مخالف فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مجالس نہیں کرا سکتے۔ دیکھیں، مخالف فرقہ اگر کوئی سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اب تو اہل سنت برادران میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک، امام کے چہلم تک، امام مظلوم کربلا کے غم میں شریک ہوئے۔ لیکن یہ کیسے شیعہ ہیں کہ اپنے شیعہ برادران کو ہی پکڑ کے کاٹ رہے ہیں، اپنے شیعہ برادران کے اوپر FIR جھوٹی درج کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں ابھی اس وقت یہاں کی بستی وڈانی کے لوگوں کے پاس موجود ہوں، ان کے موقف بھی لوں گا، ان سے بات چیت پوچھوں گا کہ کیا ماجرا ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے یہ ایک ماہ سے خدا کا گھر امام مظلوم کربلا کا عزا خانہ بند ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آڈینس کی طرف اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی وہ ساری بات بتائیں۔ بات یہ ہے، السلام علیکم یا علی مدد۔ علامہ صاحب، میں درخواست کر رہا ہوں، میں سید ہوں یہاں کا، اس قوم کو ہمارے دادا نے شیعہ بنایا
और हमने इमाम बारगाह की बुनियाद जो रखी थी, बड़े इमाम बारगाह की, कसर ज़ैनब की, मेरा दादा रख के किया था। फिर मेरा चाचा आ गया, फिर मेरा भाई आ गया, फिर हम आ गए। इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। हम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे एक मोमिन है उसके पास गए, जिसका नाम है जवार मोहम्मद अली, इबादत गुजार, 14 दफ़ा जवार। हम लोगों को यहाँ से ले गया कि भाई आप यहाँ नहीं रहे, मैं आपको दे रहा हूँ इमाम बारगाह जगह दे रहा हूँ। हमने इसको जगह दे दी, जगह उसने दे दी। हमने पैसा लगा दिया, 10 लाख तक हमारा पैसा लग चुका है, मोमिनीन का, मेरा, मेरे भतीजों का, कौम का। कौम ने हमें बहुत दिया। हम इमाम बारगाह जब तैयार कर चुके, 1 साल तक मेरा नाम उसने मुतवल्ली तक रखा। 25 ज़िलहज को मैंने उसको कहा कि रात 26 की आ रही है, मुझे अलम लगाने दो जो मीज़ का होता है, पंजराते का, और रात को कल से हम लोग उस पर जो है ना अपना मातमसारी करना शुरू कर दें पंजराते में। तो उसने दूसरे दिन मेरा नाम भी काट दिया और हमें आने से रोक दिया, मलकिया से रोक दिया। मुहर्रम उसने खुद कराया, चेलम अभी उसने खुद कराया। हमारा उसने नाम और निशान ही नहीं रखा, न मनाने आया, न कहने आया, न किसी कौम ने उसको कहा कि तुम गलत कर रहे हो। सादात का हक नहीं खाना चाहिए। और अजान में भी कहता है दुश्मन अहल बैत लानत, जहाँ बीबी का हक है उस पर लानत। तो सादात का हमारा जो हक आया इसने, इसका कौन जवाब देगा? हम थानों के काबिल नहीं हैं, ना हमारी कोई इतनी ज़रूरत है कि हम जाएं थाने पे केस करें, ये करें वो करें, ना लड़ाई कर सकते हैं। कुछ लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पे, वो मरकज़ विलायत अली की औलाद को लूट लिया, विलायत अली का मरकज़ बन गया। आप हमारा सुने बात। और मेरा असल घर काटगढ़ सादात में है, बिलोट की शाही साहब दलवाब की औलाद हैं हम लोग, असल बुखारी हैं। यहाँ पे 50-60 साल से रह रहे हैं और हमारी सुनता कोई नहीं है। अदालतों में हम नहीं जाते, किसी और को कौम को थां दी है, किसी ने नहीं सुनी, ना कोई सुनता है। वस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मौलाना सैयद हसन अब्बास नकवी मौजूद हैं। तो हम इनसे सारा माजरा पूछते हैं कि शाह साहब से कि क्या माजरा हुआ, कौन सी ऐसी वजह है कि लोग इमाम बारगाह बंद कराने तक आ गए हैं, खुदा के घर को बंद करवाने आ गए। हम तो लोगों को तबलीग यही करते हैं कि हक़ की तरफ आओ। अगर हम ही शियाने हैदर करार ही लोगों को मस्जिदों में जाने से रोकें तो फिर हमारे इमाम पे हम क्या उसे कमेंट दें। तो मौलाना साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो ये क्या सारा माजरा है, ये आप बताएं अपनी ज़ुबान में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हसन अब्बास नकवी, इलाका यही हमारा है। मैं तहसील अलीपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, डिवीज़न डेरा गाज़ी ख़ान से। ये हमारा इलाका है, टिब्बा बिडानी इसको कहते हैं। यहाँ एक इमाम बारगाह है और ये कदीमी इमाम बारगाह है। जिस बंदे ने ये इमाम बारगाह के लिए ज़मीन डोनेट की थी, दी थी, उन्होंने यही कहा था कि ये इमाम हुसैन का घर है। इस इमाम हुसैन के घर को अलहदा बनवाने का हमारी फ़िक़्ह जाफ़रिया में सिर्फ़ है ही इसलिए जो हम मस्जिद बनवाते हैं, उस मस्जिद में कोशिश करते हैं कि मुसलमान आए और गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में दाखिल ना हो। इमाम हुसैन का घर इसलिए बनवाते हैं कि इमाम हुसैन कायनात के हर बंदे के मोहसिन हैं। वो इस घर में आएँ और आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात सुने और इमाम हुसैन को जाने कि इमाम हुसैन क्या हैं। ये जो बिरादरी है, ये बिडानी बिरादरी है। इन्होंने ही ज़मीन को यहाँ डोनेट इमाम के घर के लिए किया था। कुछ अरसा यहाँ पे आज़ादारियाँ, बहुत ज़्यादा आज़ादारियाँ होती रहीं। फिर इन दोनों पार्टियों में आपस में इख्तलाफ हुआ एक नज़रिए पे, और वो नज़रिया ये था कि एक पार्टी कहती थी कि जैसा अल्लाह ने पाक अली अलैहिस्सलाम को बनाया है और जैसा ही रसूल खुदा ने दिखाया है, हमें वैसा मानना चाहिए कि जहाँ अल्लाह और रसूल को मानते हैं वहीं पे ही उसके नायब अली अलैहिस्सलाम को मानना चाहिए। इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे
मौलवी साहबान ने ये कहा है कि आज़ादारी मजलूम करबला नहीं करनी, इमाम बारगाह में जंजीर नहीं चलानी, इमाम बारगाह में मातम नहीं करना, ये जगह ख़राब हो जाएगी। तो ये मुक़द्दसात हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के। हम जिससे प्यार करते हैं उस प्यार का इजहार करते हैं। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब निमरूद ने आग में डाला था तो एक हुदहुद परिंदे ने उड़ के सारी परिंदों को यही बताया था कि मैं उड़ के जा रहा हूँ इसलिए कि मेरे एक पानी के कतरे से आग बुझेगी नहीं, मगर मैं इब्राहीम को दिखाने जा रहा हूँ कि इब्राहीम मैं तेरे साथ हूँ, निमरूद के साथ नहीं हूँ। ये इमाम हुसैन की आज़ादारी हम करके कायनात को यही दर्स देते हैं कि या हुसैन हम तेरे साथ हैं, यजीद के साथ नहीं हैं। इससे अब कुछ 1.5 साल 2 साल में यहाँ पे एक तनाज़ा बना है कि कुछ शर पसंद लोगों ने यहाँ पे आके आज़ादारी में रखना डालना शुरू कर दिया और इसके बाद नमाज और इबादत में। इस साल का जो वक़ुआ है इसी साल का, उसमें ये हुआ कि जब यहाँ के लोग नमाज पढ़ते थे उन्होंने अपनी अलहदा से एक नमाज का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया। एक नमाज बाहर होती थी फ़िक़्ह जाफ़रिया की, एक कमरे के अंदर होती थी, यानी मस्जिद और इमाम बारगाह के अंदर 2 नमाजें होती थी। जब नमाजें ख़त्म हो जाती थी उससे पहले ख़तीब का हक़ ये नहीं बनता कि एक बंदा है जो तशहुद में अलीयुन वलीउल्लाह को वाजिब समझता है और दूसरा जो कहता है नमाज इससे बातिल हो जाती है, वो बातिल कहने वाला ये नहीं कह सकता कि किसी मासूम ने नहीं पढ़ा, फ़लाँ ने नहीं पढ़ा, ये लानती हैं, ये मुशरिक है। इन मुशरिक लानती वगैरह की बातें तान शान सुन के इन बिरादरी ने ये कहा कि भाई हम आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह हमारी कबूल करे ना करे, आप मौलवियों का क्या काम है हमें मुशरिक कहने वाले। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ अरसा पहले इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ एक प्रोपगंडा हुआ, यहाँ से एक जलूस बनाया जा रहा था जिसकी इन्होंने नफ़ी कर दी कि नहीं हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जलूस नहीं निकालेंगे। उसका इन्हें जुर्माना ये पड़ गया कि उन्होंने कहा कि इस मस्जिद और इमाम बारगाह जो शियों की है उसमें शिया ना आए। नमाज के दौरान पढ़ते हुए नमाज उन्होंने आगे इनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि हमारे इलाके के SHO DSP तक मामला पहुंच गया। उसमें ये जो मातमदार और आज़ादार थे वो ज़ख्मी भी हुए हैं, उन पे FIRें भी हुई हैं और FIRें भी मेरे हाथ में हैं। 3 FIRें हुई हैं जिनसे इनके कुछ बंदे अभी जेल में पाबंद सलासल हैं और उसकी वजह सिर्फ 2 वजह हैं, एक अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार और दूसरा आज़ादारी मजलूम करबला। जी ये मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये FIRें झूठी दर्ज हुई हैं जिनका कोई मकसद नहीं, बिला मकसद ये दर्ज की गई हैं और तशद्दुद किया गया है। पुलिस एहलकार हम उन्हें बुलाते हैं इंसाफ के लिए, और अगर हमें इंसाफ मुहैया नहीं होना तो हमें पुलिस एहलकार की क्या ज़रूरत, हमें हुकूमत के नुमाइंदों की क्या ज़रूरत, वज़ीर हो, मशीर हो, बादशाह हो या जो भी हो, हमें उनका फ़ायदा तो तब होना चाहिए ना कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। अब देखें इमाम मज़लूम करबला के घर को बंद किया जा रहा है और झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं ज़ुबैरियों की तरह, बनु अब्बासी की तरह। जी ये भी मुझे दिखाएं। ये पर्चे मलकियत है, यानी जिसके नाम ये ज़मीन गुलाम रसूल वल्द अली खान अल्लाह वसाया वल्द समाना इमाम ज़माना जेरा उन्हें दा इमाम बारगाह है उठे संगे हुंदा पर्चा मलकियत है पिछू देख गिनो ए 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ इंदा इंतकाल दिता गए उन तो बाद ओ वैरान इमाम बारगाह जनाब को दिखा। अच्छा मुझे मौलाना साहब से बात करने दें। अच्छा मौलाना साहब आप मुझे ये बताएं कि इसकी जो मलकियत है हाजिर वक्त वो इसके मालिक कौन है? इसके मालिक ये बिडानी बिरादरी थी, इनका जो बुज़ुर्ग था उन्होंने वक्फ़ की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे और इमाम बारगाह के नाम पे। तो वो बुज़ुर्ग थे वो वहाँ से चले गए, जो उनकी आगे आल औलाद आई उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बाप दादा ने जैसे ये वक्फ़ कर दिया है यहाँ पे आज़ादारी ही होगी और आज़ादारी होती रही है। मगर अब 1.5 साल से कबल 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए हैं, इमाम बारगाह को भी ताले हैं,
مسجد کو بھی تالے ہیں اور مہمان خانہ جو امام بارگاہ کا بنا ہوا ہے اس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مومن مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے قاصر ہے، کوئی عزادار، اس سال کی بات ہے چہلا میں امام حسین علیہ السلام، کائنات میں ہر جگہ ہوا ہے، مگر یہ ایسے عزادار بدبختی کا شکار بن گئے ہیں کہ یہ امام حسین کو رونے کے لیے 10-10 میل کا سفر کر کے جاتے تھے، مگر یہاں امام بارگاہ میں امام حسین کو انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ یہاں عزاداری نہیں ہوئی اس دفعہ، چہلم نہیں ہوا، چہلم علی پور یہاں سے قبل ہے تھوڑا دور، وہاں گھلواں میں ایک زری پاک ہے، مولا عباس کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سارے مستورات مرد یہاں سے سارے جمع ہو کے ایک ریلی کی صورت میں، ایک جلوس کی صورت میں علم اٹھایا اور مولا عباس کی زری پہ جا کے اب مولا عباس کو جا کے پرسہ دیا کہ ہمارے گھر میں ہمیں امام حسین کو نہیں رونے دیا جا رہا، اس لیے ہم آپ کی طرف رونے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ برادری کے ساری عوام یہاں کھڑی ہے، ان میں جو لڑائی پڑی تھی کچھ زخمی ہوئے تھے، ان میں سے زخمی بھی یہاں موجود ہیں جو زخمی ہوئے تھے، آپ ان سے بے شک سوال یہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا بھی ہم بھی اگر عادلانہ فیصلہ آل محمد کے نزدیک یہی ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو تالا لگانا حرام ہے۔ امام بارگاہ امام حسین کا گھر ہے، اس میں امام حسین کو جو بھی مانتا ہے امام حسین کے گھر میں آ سکتا ہے، مگر ان کے لیے بین ہے کہ یہاں وہ آئے گا جو ان کے مولوی کی تحریک میں شامل ہوگا، جو مولوی کی تحریک میں نہیں ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ جی ناظرین دیکھیں بدبختی کہ جس شخص نے اس زمین کو وقف کیا امام مظلوم کربلا کی بارگاہ کے لیے اور خدائے پروردگار ذوالجلال کے گھر کے لیے، یعنی مسجد و امام بارگاہ کے لیے، جس شخص نے اس کو وقف کیا اس کی جا اولاد کو آنے کی اجازت نہیں، اور جن کو پتہ ہی نہیں، جو لوگ ایجنسیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس کی ملکیت رکھ رہے ہیں۔ تو ابھی مولانا صاحب آپ آقائے موسوی سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں سرکار پہلے تو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ سرکار ہم آپ کو قائد مانتے تھے، قائد مانتے ہیں اور قائد مانتے رہیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ آل محمد آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ شر شیطان اور شر انسان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ سرکار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کا ایک ایجنڈا ہے نا کہ عزادار مظلوم کربلا کا دنیا کے جس حصے میں بھی ہے وہ امام حسین کو کھل کے عزادار بن کے عزاداری مولا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل علاقہ، یہ جو ہمارے علاقے والے لوگ ہیں، یہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا حکم جاری کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اگر ہمیں امام حسین کو رونے نہیں دیا جا رہا تو ہم امام حسین کو رونے کے لیے کہاں جائیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں روئیں گے تو ہم آپ سے یہی گزارش عرض کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو، علاقے والوں کو، امام حسین کا انہوں نے گھر بنایا ہے، انہیں یہ گھر واپس چاہیے اور یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن کو یہاں بلا کے پرسہ دے سکیں۔ اچھا مولانا صاحب آپ سب کے لیے متفقن علیہ ہیں، جی جی بالکل۔ یہاں کا کوئی سید ہے یا کوئی امتی ہے، امیر ہے غریب ہے، آپ سب کے لیے ایک ہیں۔ بے شک۔ اب آغائے موسوی کے توسل سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو لڑائی ہے کیا اس میں کوئی ذاتیات تو نہیں ہے؟ نہیں، ذاتیات ہوتی تو یہ پہلے ہی ایک نہ ہوتے۔ جی جی یہ پہلے اگر ایک تھے، ان کے رشتے آپس میں ہوئے تھے تو ذاتیات تو نہیں تھی۔ ذاتیات ہوتی تو پہلے رشتے نہ دیتے۔ ان کی رشتہ داری آپس میں گہری ہو گئی ہے۔ امام بارگاہ میں آ کے لڑائی کا کرنا یہ بات بنتی نہیں ہے کہ ان کی ذاتی لڑائی ہے۔ امام کے گھر میں لڑائی کا ہونا پتہ چلا امام کے گھر کی لڑائی ہے، وہ امام کے گھر میں آ کے لڑائی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کی کوئی ذاتی لڑائی، ان کی لڑائی کے دو ہی مقصد ہیں، دو ہی وجہ ہیں کہ جو ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عزاداری مظلوم کربلا اور علی ولی اللہ نہ کہا جائے جہاں اللہ اور رسول کی گواہی ہے، اور جو یہ ہیں ملنگ طبیعت ہیں، عزادار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ اور رسول ہے وہیں علی ولی اللہ ہے، اور عزاداری مظلوم کربلا ہماری شہرگ حیات ہے۔ لڑائی کا اصل مقصد یہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وسیم عباس زیدی، تو ہم ان سے گفتگو کر دیں۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ جی اللہ علیکم۔ جی بابا جی آپ بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے کہ میرے بڑے بھائی حسن نقوی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، علامہ صاحب، بالکل ایسے ہی کچھ واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں، اور ہم علی پور تحصیل علی پور سے تعلق رکھتے ہیں۔
हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चंद शर पसंद अनासिर हैं जो कि आज़ादारी मज़लूम करबला को रोकना चाहते हैं। कोई भी किसी को भी फॉलो करे, हर वो शख्स अपनी ज़ात में आज़ाद है। कोई किसी को फॉलो करता है, लेकिन किसी भी शख्स को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो मज़लूम करबला की आज़ादारी को रोके, इमाम बारगाहों को, मसाजिद को ताले लगाए जाएँ। इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे। मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी संगत, मेरे अलीपुर के लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम आज़ादारी चाहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ ताल्लुक़, रिश्ता, नाता आज़ादारी के साथ है। जो आज़ादारी करता है वो हमारा भाई है, जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ है वो हमारा दुश्मन है। वो कल भी हमारा दुश्मन था, वो आज भी हमारा दुश्मन है, और आने वाले वक्तों में भी हमारा दुश्मन रहेगा। मेरी आगा साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक मुद्दबाना इल्तिजा है कि अगर किसी भी तरीके से इनका कोई तस्फिया हो सकता है तो पहले वो कराया जाए। अगर नहीं होता तो कम अज़ कम जो लोग हक़ाइक़ पर मबनी जो भी यहाँ पे हालात और वाक़ियात हैं उसके बारे में FIR हैं, किसी पे झूठी FIR कराई गई हैं, तो उनका सद्देबाब किया जाए, उसके लिए कुछ वर्क किया जाए। और सबसे पहला अमल हुकूमत वक्त से भी, और यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया है, इदारे हैं, और यहाँ के जो अहले इलाका मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे हाथ बांध के गुजारिश है कि पहले सबसे पहले जो ये इमाम बारगाहों को, मसाजिद को ताले लगाए गए हैं, बराए मेहरबानी इनको खोला जाए। सबसे पहला इक़दाम यही होना चाहिए। लड़ाई झगड़े इख्तलाफात चलते रहेंगे, ये होते रहते हैं। सबसे पहले जो है इमाम बारगाह के ताले खोले जाएं ताकि यहाँ पे आज़ादारी मज़लूम करबला हो सके, जिस मकसद के लिए बनाया गया है। आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में चहलम के जुलूस निकाले गए हैं, हर जगह पर आज़ादारी हुई है। ये हमारी बदकिस्मती है। ये सिर्फ एक किसी इमाम बारगाह या अहले इलाका की नहीं, ये हमारे तशय्यो की, अहले तशय्यो की बदबख्ती है कि हमारा इमाम बारगाह को हम लोगों ने ही, जो हम में से हैं, हमने मिल के इसको ताले लगवाए हैं। सबसे पहले मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि इसके ताले खुलवाए जाएं और उसके बाद इनका कोई तस्फिया कराया जाए। अगर तस्फिया नहीं होता है, किसी एक बात पर इकट्ठे नहीं हो सकते इधर से या उधर से, तो इसका जो भी फैसला होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से, बुजुर्गान दीन की तरफ से, उसका वो फैसला कराया जाए। सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बस्ती वडाना में मौजूद हूँ, और यहाँ मैंने मौलाना साहब से भी और जैदी साहब से भी मैंने मौक़िफ़ लिया, और यहाँ के लोगों की भी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना ये है कि हमारा कोई किसी से ज़ातियात का मसला नहीं, ना ही हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा है। हमारी फ़कत गुजारिश ये है कि इस इमाम बारगाह को खोला जाए ताकि हम इमाम मज़लूम करबला को पुरसा देख सकें, इमाम अलैहिस्सलाम का गम मना सकें, हम मजालिस बर्पा कर सकें। जिस चीज़ के लिए हमारी माओं ने दुआएं मांग के हमें मांगा था कि या अल्लाह मुझे आज़ादार बेटा अता फरमा, हम वो आज़ादार हैं। हम इमाम मज़लूम करबला की आज़ादारी करना चाहते हैं, और साथ ही कायद मिल्लत जाफरिया आकाए सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजवी से ये अपील करते हैं कि आगा जी हमारी दरख्वास्त सुनी जाए और हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हम कल भी तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया थे, आज भी तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया हैं, ताज़ ज़िंदगी तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया हैं। कल भी लब्बाइक मूसवी कहते थे, आज भी लब्बाइक मूसवी कहते हैं, ताज़ ज़िंदगी लब्बाइक मूसवी कहेंगे। हम कल भी मूसवी को कायद मानते थे, आज भी आकाए मूसवी को कायद मानते हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी कायद मिल्लत जाफरिया सैयद हामिद अली शाह मूसवी और नजवी को अपना कायद समझते हैं। तो कायद मिल्लत जाफरिया कानूनी तरीके से, कानूनी इमदाद से हमारे मसाइल हल करें, क्योंकि हम ना ही किसी और पार्टी को, ना ही किसी तंजीम को तस्लीम करते हैं। हम आपको फ़कीर, हम आपको अल्लाह का वली, हम आपको नेक मुअज़्ज़ज़ सैयदज़ादा समझ के हम आपसे अपील करते हैं कि आगाए मूसवी हमारी जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो उम्मीद करते हैं जी इंशाअल्लाह आकाए मूसवी इस चीज़ पर अमल करेंगे। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया के इंशाअल्लाह यहाँ पर कारकुनान आएंगे और इस पर अमल किया जाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद असदुल्लाह नकवी को इजाज़त दें।